Good morning everyone. After states of matter, which was the fifth chapter of first part of NCERT, now we are going to start with the eighth chapter, which is from second part of NCERT, and that is redox reactions. Redox reaction includes two types of reactions in it: oxidation reaction and reduction reaction. Like you all are aware about different types of reactions like combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and so on. These different types of reactions you are aware of. अब जैसे combination, the name is indicating that there is a combination of two reactants to give rise to a single product. Like magnesium is the first reactant which is reacting with oxygen to give the product which is magnesium oxide. Now here magnesium and oxygen, they are getting combined to form magnesium oxide. In the same way, water, it will get decomposed to give hydrogen gas and oxygen gas. No doubt not under normal conditions, but we can decompose, we can break down water molecule to hydrogen and oxygen. Now the name here is decomposition. Decomposition means breakdown. मतलब किसी एक रिएक्टेंट का टूट जाना और टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इन द सेम वे कॉम्बिनेशन मींस किसी दो चीजों का जुड़ जाना. तो यहाँ दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, जुड़ रही हैं, दो रिएक्टेंट्स जुड़ रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द नेम एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन, द नेम इज दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. In the same way, if according to the name about oxidation and reduction, oxidation is the addition of oxygen. Oxidation is addition of oxygen. But this is not the only way which is sufficient to explain the oxidation reaction or to identify the reactant which is getting oxidized. There are other different ways also to identify whether the reaction is oxidation or not. The first is addition of oxygen. Second, addition of electronegative element. The other way is removal of hydrogen or removal of electropositive element or removal of electrons. And out of all these, the removal of electrons is the best way to identify whether the oxidation is taking place or not, or which reactant is undergoing oxidation. ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या अगर ऑक्सीजन नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस द एलिमेंट व्हिच इज हैविंग द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, वो वाला एलिमेंट का ऐड हो जाना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन or removal of electropositive element, and the last removal of electrons. मतलब अगर किसी रिएक्टेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं रिएक्शन होने के लिए, then that reactant is undergoing oxidation. On the other hand, reduction, it is the vice versa of this. reduction में क्या होगा? removal of oxygen or removal of any electronegative element or addition of hydrogen, addition of any electropositive element or addition of electrons. means इससे बिल्कुल opposite. यहाँ हम ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। And the last very important is addition of electrons. So these are the different ways to define reduction, or we can say that different ways to find that whether the reduction is taking place in a reaction or to find out which reactant is undergoing reduction. To understand it more clearly, let's take an example. Suppose we are writing the example of reaction between magnesium and oxygen to form magnesium oxide. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड अप इन मैग्नीशियम। अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, खाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में देखें तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ we'll understand it in terms of electrons. Magnesium here is not reacted with anyone. किसी के साथ वो reacted नहीं है। अगर वो किसी के साथ reacted नहीं है, इसका मतलब इसमें number of electrons and protons they are equal. अगर number of protons and electrons they both are equal, means magnesium is having no charge here. Here this oxygen molecule is formed by the combination of two oxygen atoms, and these two oxygen atoms are formed by the formation of covalent bond, means by sharing of electrons. अब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों एक जैसे एलिमेंट्स के बीच में, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। The oxygen here is also not carrying any charge. लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, we know that magnesium oxide is formed by the transference of electrons from magnesium to oxygen. मैग्नीशियम अपनी वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को लूज कर देगा, इसको दे देगा, और इसके पास क्योंकि अब टू प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा हो गए, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है, और इसने 2 नेगेटिव चार्ज गेन कर लिए, इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। इसलिए ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे, और हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, MgO। मींस MgO जब बना तब इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर -2 चार्ज है। नाउ मैग्नीशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड was having 0 चार्ज। यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर 0 चार्ज था और यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है। ये +2 चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज कम है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है, एंड इट इज हैविंग 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं। अब ये 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा, इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। इस ये 0 से +2 कैसे हुआ, इसके पास 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा कैसे हुए, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम से ये मैग्नीशियम बनने तक यहाँ क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कमिंग टू ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, लेकिन जब ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है तब इसके पास -2 चार्ज है। -2 क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका है। इसका मतलब यहां से यहां जाते हुए ऑक्सीजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स गेट गेन्ड हियर। नाउ वी हैव डन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा तो इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास तो जाएंगे, वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नहीं घूमेंगे।
तो इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए, मींस मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की, और रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एंड बोथ द रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर गोइंग साइमल्टेनियसली। एक अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है तो दूसरे उसके इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसलिए हम इसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज इन दीज रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ने छोड़ने तो दूसरे ने गेन भी करने हैं। दैट इज व्हाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब अकेले हम अगर पहले इसे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से नहीं स्टडी कर रहे थे तो ये हमें ऑक्सीडेशन दिख रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें एड ऑन हो रहा था। बट नाउ वी हैव कम टू नो दैट अलोन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, इट अकर्स इन पेयर्स ओनली। ये इकट्ठे ही होते हैं, इसलिए हम इसे अकेला ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते। सो इन दिस वे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, we can tell that whether the reaction is a redox reaction or not, which substance is undergoing oxidation, which substance is undergoing reduction. So this is just a simple example to explain the redox reactions. Thank you.